हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स लर्निंग क्लासरूम स्टाइल। मैं शिखा और आप सबको मेरा जय श्री श्याम। जैसे कि हमने अपने लास्ट साइंस के वीडियो में बताया था मैंने दैट वी हैव कंप्लीटेड अ टॉपिक ह्यूमन बॉडी विच वाज टीथ। द बॉडी पार्ट दैट वी हैव स्टडीड इन डिटेल वाज टीथ, and we will be starting the new chapter which is the digestive system. So human body part which is the digestive and excretory system. In this particular topic we will understand the various internal body parts. Yes, so digestive system process involves the various internal body organs that breaks down the food into smaller and simpler forms that can be absorbed by a body, and for what? To give us nutrient and energy. Yes, so basically what is a digestion process? What do you understand by a digestion process? So digestion process is whatever we eat, that food, when we chew, it goes from our mouth to our stomach. Yes, so then those foods are further processed, further simplified, so all the good nutrients are absorbed by the body, and whatever is not digested or is not good, is not waste, is thrown out of our body. So there are various organs which performs different functions for this entire process to get completed. The digestion process does not only happens by the stomach. There are various other body parts, organs which gets involved in to complete one major process. So if I show, this is a picture of our digestive system, and the digestive system starts from our mouth. Why? Because from mouth, the food that we eat through our mouth. Then from mouth it goes through this esophagus, which is also called the food pipe, to the stomach. When it goes to the stomach, then from stomach it goes to the small intestine, then the large intestine, and the waste material is thrown out through anus. So what are these? So then in between we'll see there's a liver also, pancreas also, then there are rectum also, small intestine. So all these organs which are shown in the picture, they perform different functions through which whatever food we are eating, the good nutrition is absorbed by our body, and they give us energy, and whatever is not good or is not digested gets thrown out of our body. So the digestion process basically has four parts, four major processes. So one is ingestion, digestion, absorption, and elimination. So what is ingestion? Means to intake. So ingestion means to start, to take. So ingestion is firstly which starts from the mouth, that is to take the food, to eat the food that goes to the stomach. What is digestion? So digestion is a process where different organs work together and break down the food into simpler forms so that they can be easily taken or absorbed by our body, and that entire thing is called the digestion process. What is absorption process? So whatever nutrients that the food that we have eaten, so whatever the nutrients are there, those all goes to our bloodstream. Yes, and what is elimination? So whatever food that we have eaten is not good, it's undigested by our body, that gets thrown out from our body through anus. We will in this particular chapter will discuss all the different parts of the body which is mentioned here in the picture from the first step of how it starts to the last step, anus, from where the undigested food is thrown out. There will be many new words, students, that you will be coming across in this particular chapter. Therefore do rewatch the videos again and again
for the concepts to be clarified, because this will be a more or less the basic form of a very start of this particular topic to you for in the grade 3 or 4, and gradually when you move up the ladder 5, 6, 7, these will be discussed, these will be taught in much more detail. So definitely, if I tell you, for example, the salivary glands, so there in our mouth there are basically 3 salivary glands. Those 3 have different functions. One is just under our ear, one is under the jaw, and one is somewhere here. But when we introduce this topic to the students in the class 4 or 3, we don't discuss all these parts in details. We just explain the process of digestion, how the food that we eat is digested in our body through various organs. These organs also perform many other activities that gradually we'll get to know, we learn in our class 6, class 7. Therefore, the first concept when this chapter is introduced to you is important for you to understand it better, because the more you will put an effort to understand this particular topic now, it will help you in future. So quickly we'll take the notes of whatever I have discussed with you. Let's start. So the digestive system. So what is a digestive system? It is also known as gastrointestinal system. Short form is GI. Is a group of organs. So as I told, so these are a group of organs, and these are what organs? These are internal organs which we cannot see, that work together to convert food and liquids into energy and nutrients the body need. So whatever we eat, whatever we drink, these all are converted into what? Energy and nutrients that the body needs. It involves a breakdown of food into smaller components that can be absorbed into the bloodstream and elimination of undigested waste. So what does it say? That this digestive system, so this digestive process involves 2 things. One is breaking down the food into smaller components, जो हमारी बॉडी उसको absorb कर सके, किसके थ्रू? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसे हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल सके. तो सिर्फ इसका काम बेसिकली 2 रहता है. एक, उस खाने को छोटे छोटे पार्ट पे तोड़ना ताकि उसकी जो बेनिफिट्स है वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, ताकि हमें एनर्जी मिले हमारे डे टू डे काम के लिए. और जो भी खाना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वो अनडाइजेस्टेड है, उसे हमारी बॉडी से बाहर निकाल देना. So the major processes in digestion are, there are 4 major processes which I told you in the start also. They are ingestion, मतलब लेना, intake, digestion, जो हमने खाना खाया है उसको प्रोसेस करना, absorption, जो भी हम डाइजेशन थ्रू जो भी खाने का बेनिफिट है उसको प्रोसेस करके ब्लड स्ट्रीम में लेके जाना ताकि हमें एनर्जी मिले, और जो भी फूड हमारे बॉडी के लिए नहीं ज़रूरत है, जिस चीज़ की नहीं रिक्वायरमेंट है, उसे बाहर हमारी बॉडी के फेंक देना. सो लेट्स सी व्हाट आई हैव क्विकली रिटन. सो इंजेक्शन, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी थ्रू माउथ, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम का जिस पिक्चर अगर हम देखते हैं तो द फर्स्ट पार्ट दैट इज विजिबल इज माउथ, और हम जो खाना है, जो फूड है, वो अपने माउथ से ही खाते हैं. Digestion, various organs that work together and break down the food into simpler form so that they can be easily taken in or absorbed by the body is called digestion. What is absorption? Moving nutrients from the digestive tract into bloodstream. तो यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक क्या हुआ? ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल, या फिर अगर मैं सिंपल फॉर्म पे बोलूँ तो जो ये फूड पाइप है, जिसके थ्रू जो खाना है वो हमारे माउथ से फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जो आता है, सो इसे हम एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं.
फिर एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एलिमिनेशन, रिमूविंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। तो जो भी खाना हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड रह गया है उसे रिमूव करना। यस फिर देखते हैं मैंने यहाँ पे और क्या क्या नोट्स बनाए हैं। नाउ वील डिस्कस हाउ दिस प्रोसेस वर्क। तो ये प्रोसेस जो है ये कैसे काम करता है, जो डाइजेशन का इतना बड़ा प्रोसेस जो हमारा बॉडी करता है ये कैसे करता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। और कैसे होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसे च्यू करते रहते हैं, उसे च्यू करते हैं। एंड सलाइवा क्या है, वो हमारी बॉडी, वो हमारे माउथ में एक वाटर रहता है हमेशा। अगर आपने नोटिस किया हो कि हमारा माउथ जो रहता है वो हमेशा गीला रहता है, देयर इज सम वाटर इन इट। वो हमारे जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं उसके से वो जो वाटर है वो आता रहता है और वो बहुत ज़रूरी है हमारे पूरे डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। द फूड देन ट्रेवल्स डाउन द एसोफेगस या फिर फूड पाइप टू स्टमक वेयर इट इज चर्न्ड एंड मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूसेस। तो फिर वो खाना क्या होता है, हमारे मुंह से हमारे पेट पे जाता है। किसके थ्रू, इट गोज थ्रू द एसोफेगस या फिर फूड पाइप वेयर इट इज चर्न्ड एंड मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूसेस। Then the partially digested food then moves into the small intestine where most nutrient absorption occurs with the help of bile from the liver and enzymes from the pancreas। तो ये बाइल क्या होती है, ये एक जूस है जो लिवर से मिलता है करके, और ये जो जूस रहता है ये डाइजेस्टिव जूस इसे हम कहते हैं। और ये हमारे पूरे डाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। एंड एंजाइम्स जो हमारे पैंक्रियास से आते हैं ये बेसिकली गुड बैक्टीरिया, गुड जर्म्स होते हैं। जो भी खाने में हमारे बैक्टीरिया या जर्म्स रहते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है। तो जो ये एंजाइम्स हैं ये उस चीज़ पे बहुत हेल्प करते हैं। बेसिकली ये जो चीज़ें हैं दीज आर गुड थिंग्स फॉर आवर बॉडी, जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से हमारे स्टमक पर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती है। द अनडाइजेस्टेड मटेरियल पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर देखिए अगर मैं यहाँ देखो तो खाना यहाँ से हमने खाया, ये हमारे स्टमक में आया, ये हमारा स्टमक है, ये हमारे जो है ऊपर में लिवर है। तो फिर नीचे में जो यहाँ पे आप देखेंगे दीज आर पैनक्रियास। तो ये स्टमक में लिवर से बाइल जूस आता है, पैनक्रिया से जो है वो एंजाइम्स आते हैं, ये सब यहाँ पे मिलके फिर जो भी हमारा खाना है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और फिर जो हमारा अनडाइजेस्टेड खाना रहता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होता है, जहाँ पे पानी जो रहता है वो अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड द रिमेनिंग वेस्ट इज फॉर्म्ड इनटू फीसेस। फाइनली द फीसेस आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस पर्टिकुलर पिक्चर को बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे तो इससे भी हमें अपने इस डाइजेस्टिव सिस्टम, इस टॉपिक को समझने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले क्या आया, माउथ है। माउथ की वहाँ पे एक पाइप अटैच है जो स्टमक पे आता है, वहाँ से खाना। फिर स्टमक के थोड़े ऊपर में जो लेफ्ट हैंड साइड में है तेरा लिवर, नीचे में जो है उसके थोड़ा सा वो है पैनक्रियाज। जो खाना सबसे पहले हमारा बॉडी डाइजेस्ट करता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जो अनडाइजेस्टेड रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे जो भी पानी रहता है उस खाने पे वो अब्जॉर्ब हो जाता है। और जो भी रिमेनिंग वेस्ट है दैट गेट्स टर्न्ड इनटू कन्वर्टेड इनटू फीसेस। और जो फीसेस हैं फिर वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं थ्रू एनस। तो ये जो है ये पिक्चर जो है यहाँ पे अगर ये जो अंदर में जो ये आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। और बाहर में जो ये गोल्डन कलर से है दैट्स अ लार्ज इंटेस्टाइन। यस, तो ये बेसिकली एक डाइजेशन प्रोसेस है। और अगर मैं आपको इसको एक सिंपल टेबल फॉर्म पे एक बहुत छोटे से उस पर दिखाऊं तो मैंने आपके लिए कुछ इस तरह से बनाया है कि सबसे स्टार्ट कहाँ से होता है ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो बेसिकली ये एक फ्लो चार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आज सबसे पहले जो हम चीज़ के बारे में जानेंगे दैट इज़ माउथ, बिकॉज जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। यस,
So the process of digestion begins from here. The mouth is the first part of alimentary canal. Alimentary canal क्या हुआ, ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो हमारे माउथ से एनस तक जाता है, जहाँ से जो फूड है वो पास होता है. एंड डू यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये कितना लॉन्ग रहता है. सो दिस इज 30 feet long. So the alimentary canal from the mouth to the anus is about 30 feet long. Yes, ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैं आपको इनके नोट्स बताऊंगी. फर्स्ट विल हैव एन ओरल डिस्कशन ताकि एंड हाँ बाय द अगर आपने इनके नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैं आपको एक बार वापस दिखा देती हूँ हाउ डज द डाइजेशन प्रोसेस वर्क्स के नोट्स ये रहे जो मैंने आपको सब हैव read these and even have explained this. So एक बार आप देख लीजिए in case if you have mistaken the notes of it. Yes, तो हम क्या कर रहे हैं, जो सबसे पहला हमारा प्रोसेस है वो कर रहे हैं which is the mouth. तो कहाँ से स्टार्ट होता है, it starts from the mouth. और वहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके थ्रू जो खाना है वो हमारे पेट में स्टमक में जाता है. द माउथ कंटेन्स क्या क्या पार्ट होते हैं माउथ में, तो उसमें रहते हैं टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. और ईच ऑफ दीज हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन. जो खाना है वो सबसे पहले जो टीथ है वो उसको ब्रेक करता है इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. और हमें मालूम है कि जब जो टीथ है हमारे डिफरेंट तरीके के रहते हैं और इसकी वजह से वो खाने को बहुत अच्छे से टीयर और ग्राइंड करता है बिफोर हम उसको अपने पेट के अंदर लेकर के जाएं, बिफोर वो हमारे पेट के अंदर जाए. जो च्यूड खाना है इज़ मिक्सड विद सलाइवा विद द हेल्प ऑफ टंग. सलाइवा जैसे मैंने बताया वो वाटरी फ्लूइड्स रहते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड से आते हैं, निकलते हैं. जो टंग रहता है वो क्या काम करता है, जो टंग है वो हेल्प करता है टू पुश द फूड डाउन द फूड पाइप. द टंग ऑल्सो गिव्स अस द सेंस ऑफ टेस्ट. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने ओरल डिस्कशन में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं. सबसे पहला क्या है कि कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेशन प्रोसेस, फ्रॉम द माउथ. माउथ में क्या होता है, जो फूड हम खाते हैं वो हमारे पेट में एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू जाता है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 feet लॉन्ग फ्रॉम माउथ टिल द एनस. जो हमारा माउथ है उसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे टंग है, टीथ है, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है. और ये सारे जो माउथ के पार्ट्स हैं ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिसके थ्रू जो खाना है वो फूड पाइप से होकर हमारे स्टमक में आता है. तो उसमें जो टीथ है सबसे पहला काम वो करता है, वो हमारे खाने को जो हम खाते हैं उसे टीयर करता है, च्यू करता है स्मॉल पीसेस में. फिर जो हमारे माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू जो सलाइवा आता है उसमें वो खाना मिक्स होता है, पूरा अच्छे से च्यू होता है. और फिर वो खाना टंग के हेल्प से जो है हमारे फूड पाइप के अंदर जाता है. तो यहाँ पे टंग के क्या क्या फंक्शंस मैंने आपको बताए. सबसे पहले मैंने बताया द टंग हेल्प्स पुश द फूड डाउन द फूड पाइप. सेकेंड मैंने बताया कि जो टंग है इट गिव्स अस द सेंस ऑफ टेस्ट. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें हमारे इस कंप्लीट चैप्टर में बहुत सारे शॉर्ट वन वर्ड के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो हर एक, अगर मैं आपको इस पूरे अभी तक जो मैंने आपको बताया है अगर मैं आपको इन में ही बताऊं तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कि क्या क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम. सबसे पहला ये व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, what are the major processes in digestion, then explain how the digestion works, explain in details या फिर explain in the form of a flow chart. देखिए डिटेल्स में ये रहा, फ्लो चार्ट के रूप में ये रहा. फिर यहाँ पे आ सकता है कि जो मेजर फ्रॉम वेयर डज द डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट, तो वो क्या है हमारा, नहीं, व्हाट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द डाइजेशन स्टार्ट्स, तो उसको इंजेक्शन कहते हैं. देन व्हाट इज़ इंजेक्शन, व्हाट इज़ डाइजेशन, व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज़ एलिमिनेशन. सो देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस दैट कैन बी फॉर्म्ड विद
only the first two pages that we have covered so far, and that's why, my dear students, revising each and everything is very important, and taking a note, making a proper notes of it is also equally important. Yes, so today we will wind up here. Tomorrow we'll cover few more. We'll take the notes of the mouth part, and then we will discuss few other organs that are involved in this digestion process. Stay tuned with me. मेरे पेज को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को. मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप सबको मेरा जय श्री श्याम.